Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start another one of the very important subject of computer science, that is data structures and algorithms. Those students who are enrolled in this subject have a great opportunity to learn this subject from the basics. So let's talk about this subject. Before discussing the definition of data structure, first of all we have to understand what is data. Being a student of computer science, you all aware with the term of data, as data has different definitions according to the field and subject. For example, data can be defined as the unprocessed values, or data can also be defined as the collection of facts and figures, or data is the raw material as well, or those values which cannot give the complete meaning or sense are also considered as the data. Here I have written a very small and appropriate definition of data over here. The data are simply values or set of values. Data values या set of values को कहा जाता है. अब ये values क्या हैं? For example, कोई भी numerical value like 2, 4, 7, 100, 200, or any character like A, B, C, D, or any name or gender or NIC number, your mobile number, these all are considered as the values, and that is why these are considered as the data as well. When we talk about the values, we have to understand that there are some different terminologies related to data, like data item that can be defined as a single unit of value. Those data items that are divided into sub items are called group item, and those data items which cannot be divided into sub items are called elementary items. For example, student's name. आप सोचें कि क्या स्टूडेंट के नेम को या किसी भी शख्स के नाम को, पर्सन के नाम को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं? ऑफ कोर्स यस. जैसा कि हम नेम को डिवाइड कर सकते हैं फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम में. सिमिलरली, एड्रेस कैन बी डिवाइडेड इनटू हाउस नंबर, स्ट्रीट, city, province. If you talk about date of birth, it is also divisible in day, month, and year. But what about the student's ID? For example, if a student is having an ID as 123, क्या आप इसको डिवाइड कर सकते हैं? यकीनन नहीं. Similarly, course, any student is enrolled in BSCS, क्या आप इस BSCS को डिवाइड कर सकते हैं फर्दर? नॉट एट ऑल. यूनिवर्सिटी का नाम क्या मजीद डिवाइड हो सकता है? नहीं. So these are the examples of group items and elementary items. Well, there are some other terminologies related to this subject. It is very important to understand this terminology here in this chapter. For example, entity. Entity क्या है? Entity basically किसी भी ऑब्जेक्ट को कहा जाता है. जैसा कि स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट है, वो एक एंटिटी के तौर पर भी कंसीडर किया जा सकता है. अब एंटिटी को स्पेसिफाई करने के लिए या उसको आइडेंटिफाई करने के लिए वी हैव डिफरेंट फील्ड्स. जैसा कि अगर हम स्टूडेंट की बात करते हैं कि स्टूडेंट एक एंटिटी है, तो उसको स्पेसिफाई करने के लिए या उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम डिफरेंट फील्ड्स के अंदर उसको वैल्यूज असाइन करेंगे. जैसा कि आपके सामने एक टेबल मौजूद है. इस टेबल में स्टूडेंट आईडी इज अ फील्ड, नेम
is the field. Similarly, gender, program and cell number are different fields. इन्हीं fields को आप property भी कह सकते हैं उस entity की, और field का भी नाम दिया जा सकता है। इन fields में हम values assign करते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि हम values के बारे में अभी अपनी last slide में पढ़ के आए हैं कि ये values किस किस्म की हो सकती हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्टूडेंट आईडी में 101 असाइन हुआ, ये एक वैल्यू है। नेम असाइन हुआ है कामरान, ये एक वैल्यू है। जेंडर मेल, मेल इज अ वैल्यू। आई मीन वी हैव टू असाइन डिफरेंट वैल्यूज टू डिफरेंट फील्ड्स, और जब हम इन फील्ड्स की वैल्यूज को कंबाइन कर दें तो क्या बनता है, एक रिकॉर्ड बनेगा। आई मीन रिकॉर्ड कैन बी डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ values into the fields. Similarly, file can be defined as the collection of records and database can be defined as the collection of file. इस field, record, file और database को आप hierarchy of data भी कह सकते हैं, कि जिसमें field किसी भी entity को specify करने के लिए इस्तेमाल हो रही है। field में इस्तेमाल होने वाली values को अगर combine कर दिया जाए तो रिकॉर्ड मेंटेन होगा। रिकॉर्ड्स को, मल्टीपल रिकॉर्ड्स को कंबाइन किया जाए तो एक फाइल बनती है, और मल्टीपल फाइल्स को कंबाइन कर दिया जाए तो डेटाबेस बनेगा। इसके लिए हम यहाँ पर एक सिंपल रियल वर्ल्ड एग्जांपल कोट करते हैं। अज्यूम कीजिए कि एक यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स एडमिशन ले रहे हैं। वो एडमिशन फॉर्म पर डिफरेंट फील्ड्स में डिफरेंट वैल्यूज को इंसर्ट कर रहे हैं, जैसा कि नेम, फादर नेम, सिटी, क्वालिफिकेशन, CNIC नंबर, सेल फोन नंबर एटसेट्रा। अब एक स्टूडेंट का फॉर्म, वो एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड कंसीडर किया जाएगा। क्यों? जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि डिफरेंट वैल्यूज ऑफ फील्ड्स are combined and they are considered as the record. तो अब जब एक एडमिशन फॉर्म पर स्टूडेंट ने तमाम फील्ड्स में मुख्तलिफ वैल्यूज को फिल किया तो अब ये रिकॉर्ड बन गया उस स्टूडेंट का। इसी तरीके से और बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने अपने अपने एडमिशन फॉर्म्स को प्रॉपर्ली फिल किया और एडमिशन ऑफिस में सबमिट करवाया। अब एडमिशन ऑफिस में क्या होगा कि उन तमाम के तमाम रिकॉर्ड्स को कंबाइन करके एक फाइल बनाई जाएगी, जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि फाइल इज द कलेक्शन ऑफ रिलेटिव रिकॉर्ड्स। अगर हम इसको थोड़ा और थॉरली देखने की, समझने की कोशिश करें तो हम ये कह सकते हैं कि वो स्टूडेंट्स जो BSCS के एडमिशन के लिए फॉर्म सबमिट करवा रहे हैं उनकी फाइल अलग मैनेज होगी। वो स्टूडेंट्स जो BSIT में एनरोल होना चाहते हैं उनकी फाइल को अलग मेंटेन किया जाएगा, और इसी तरीके से वो स्टूडेंट्स जो BBA में एनरोल होना चाहते हैं उनकी फाइल को अलग मैनेज किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि डिफरेंट फाइल्स बनती जाएंगी और इन तमाम फाइल्स को जब कंबाइन किया जाएगा तो डेटाबेस बनेगा। हो सकता है आपके जहन में सवाल पैदा हो कि डेटाबेस का प्योरली ताल्लुक तो कंप्यूटर साइंस से है, ये मैनुअली डेटाबेस किस तरीके से मैनेज हो रहा है। यहाँ पर सिर्फ ये समझाने के लिए बात की गई है, वरना ये जाहिर सी बात है कि तमाम के तमाम रिकॉर्ड्स, ये तमाम की तमाम फाइल्स कंप्यूटर में ही मैनेज होंगी। तो कंप्यूटर में डेटाबेस को हम आसान अल्फाज में समझने के लिए कह सकते हैं कि इट्स अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल। वेल, नाउ वी कैन डिस्कस डेटा स्ट्रक्चर। आपने डेटा को अच्छे तरीके से समझ लिया कि डेटा एक्चुअली है क्या, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि डेटा स्ट्रक्चर क्या है। इस डेटा स्ट्रक्चर को समझने से पहले जरूरी है कि आप क्लियरली इस बात को समझ पाएं कि आखिर डेटा स्ट्रक्चर की जरूरत क्यों है। देखें, जब आप कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं तो आप कंप्यूटर साइंस में इस चीज को थॉरली अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हेनेवर वी हैव टू वर्क विद कंप्यूटर वी हैव टू यूज डेटा। अब अगर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर, अगर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर कोई सॉफ्टवेयर डिजाइन करता है किसी भी पर्पस के लिए, तो अल्टीमेटली उस सॉफ्टवेयर में डेटा को ही मैनिपुलेट किया जाएगा।
आपने लास्ट सेमेस्टर में प्रोग्रामिंग का एक कोर्स पढ़ा, फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग, और आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का भी कोर्स किया होगा। इन कोर्सेज में आपने जो प्रोग्रामिंग की वो बहुत सिंपल से प्रोग्राम आपने डिजाइन किए होंगे, जिसमें आपने 2 या 3 या 4 वेरिएबल्स अमूमी तौर पर इस्तेमाल किए होंगे, जैसा कि आपने इंटीजर वेरिएबल्स यूज किए होंगे, कैरेक्टर वेरिएबल्स यूज किए होंगे। अब अगर आप एक इंटीजर वेरिएबल बनाते हैं और उसको कोई वैल्यू असाइन कर रहे हैं, लाइक इंटीजर a इज इक्वल टू 10, तो अब यहाँ जो 10 एक वैल्यू है, ये एक सिर्फ सिंपल एक नंबर है, लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट अ रिकॉर्ड ऑफ अ होल क्लास, तो उसमें आपको ये समझना होगा कि उस क्लास में तमाम के तमाम स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड को मेंटेन करना या मैनेज करना, ये किसी सिंपल एक वेरिएबल के लिए काफ़ी नहीं होगा। और जब आप उस कंप्लीट रिकॉर्ड को कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर करना चाहेंगे, तो ये ज़रूरी है कि आपको उसे किसी न किसी फॉर्मल स्ट्रक्चर में या फॉर्मल मॉडलिंग के तहत स्टोर करना होगा, ताकि जब आप उस रिकॉर्ड को रिट्रीव करना चाहें तो वो बेहतर तरीके से रिट्रीव हो सके और एक्सेस हो सके। और यही हमारे इस सब्जेक्ट का ओवरऑल थीम होगा कि हम डेटा स्ट्रक्चर में इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हमारे पास कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर्स अवेलेबल हैं कि हम जिनमें मुख्तलिफ तरीक़ों से अपने रिकॉर्ड्स को, अपने डेटा को स्टोर कर सकें। तो लेट्स हैव द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। Data structure can be defined as the logical or mathematical model of a particular organization of data is called data structure. देखें, यहाँ पर जो बात की गई है उसमें ये कहा गया है कि लॉजिकल और मैथमेटिकल मॉडल। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये लॉजिकल मॉडलिंग से क्या मुराद है। देखें, हम अल्टीमेटली अपने डेटा को कहाँ स्टोर करेंगे? ऑब्वियसली कंप्यूटर की मेमोरी में। अब कंप्यूटर की मेमोरी में जब आप डेटा को स्टोर करना चाहेंगे, तो कंप्यूटर की मेमोरी का अपना एक स्ट्रक्चर है, जिसमें आप देखते हैं कि मुख्तलिफ लोकेशंस एक दूसरे के साथ सिचुएटेड हैं, कंटिन्यूस एलोकेशन है। लेकिन क्या ये ज़रूरी है कि आप भी अपने डेटा को स्टोर करते हुए कंप्यूटर की मेमोरी के फिजिकल स्ट्रक्चर को फॉलो करें? यकीनन नहीं। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है कि सर ऐसा क्यों ना किया जाए? देखिए, इट डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ अ यूजर और द प्रोग्रामर कि उसको किस तरीके से अपने डेटा को एक्सेस करना होगा। मैं आपको ये एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। एक क्लास के एनवायरनमेंट में मुख्तलिफ चेयर्स मौजूद हों, स्टूडेंट्स आते जाएं और उन चेयर्स पे बैठते जाएं। ये एक्चुअली फिजिकल स्ट्रक्चर है उस क्लास का, जिसमें स्टूडेंट्स फिजिकली अरेंज किए गए हैं। लेकिन जब एक टीचर किसी भी स्टूडेंट से क्वेश्चन करना चाहे, तो क्या ये जरूरी है कि वो उसी स्टूडेंट से क्वेश्चन करे जो सबसे पहले क्लास में आया था? आपका जवाब होगा यकीनन नहीं। क्या ये जरूरी है कि टीचर उस स्टूडेंट से सवाल करे जिसका रोल नंबर 1 है, और फिर उसके बाद रोल नंबर 2 से सवाल किया जाए, फिर रोल नंबर 3 से? आप कहेंगे यकीनन नहीं, टीचर की अपनी मर्जी है कि वो किस स्टूडेंट से पहले सवाल करता है, किससे बाद में, राइट? लेकिन जब हम बात करते हैं उसी क्लास के वाइवा की, वाइवा कंडक्ट करने के हवाले से, तो हम क्या अमूमी तौर पे करते हैं? तरीक़ेकार ये होगा कि जो रोल नंबर 1 था उसको सबसे पहले एक्सेस किया जाए, फिर रोल नंबर 2 को। मुमकिन है कि रोल नंबर 1 सबसे पहले ना बैठा हुआ हो, बल्कि वो बीच में किसी स्टूडेंट के साथ बैठा हुआ हो, मगर जब एक्सेस करने की बात आई तो हमने रोल नंबर 1 को थॉरोली या यूं में से रैंडमली कॉल किया। ये है लॉजिकल मॉडलिंग कि आपकी जो मेमोरी है, उस मेमोरी का स्ट्रक्चर कुछ और है, लेकिन लॉजिकल मॉडलिंग कुछ और है, राइट? होपफुली कि आप समझ गए होंगे कि लॉजिकल मॉडलिंग से क्या मुराद है। यानी आप अपनी सहूलत के हिसाब से जैसे यूजर की या प्रोग्रामर की रिक्वायरमेंट होती है, उसी रिक्वायरमेंट को बेहतर तरीके से प्रोग्रेस करते हुए आप लॉजिकल मॉडलिंग करेंगे उस डेटा की जिसको आपने मेमोरी में स्टोर करना है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। The choice of particular data model depends on two considerations.
जब कभी भी आप किसी भी डेटा मॉडल को सिलेक्ट करते हैं तो उसके लिए दो बातें आपके जहन में होनी चाहिए। नंबर वन, it must be rich enough in structure to mirror the actual relationship of the data in real world. And number two, the structure should be simple enough that one can effectively process the data when necessary. अब मैं इन दोनों पॉइंट्स को आसान अल्फाज में आपको समझाता हूं। हम कह रहे हैं कि जब कभी भी डेटा को मेमोरी में मॉडल किया जाए, उसकी मॉडलिंग की जाए, तो ये ज़रूरी है कि उसकी मॉडलिंग रियल वर्ल्ड के साथ किसी न किसी तरह से रिजेंबल करे। ऐसा क्यों? उसकी बुनियादी वजह यह है कि आप जो भी प्रॉब्लम कंप्यूटर के थ्रू रिजॉल्व करना चाहते हैं वो एक्चुअली आपका रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम होता है जिसको आप एड्रेस कर रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। तो इट इज ऑब्वियस कि जब आप रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम को एड्रेस करेंगे कंप्यूटर साइंस के थ्रू, तो उसकी मॉडलिंग भी रिजेंबल करनी चाहिए, उस डेटा की मॉडलिंग रिजेंबल करनी चाहिए रियल वर्ल्ड की मॉडलिंग के साथ। जैसा कि आप आगे चलकर डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स को थॉरोली पढ़ेंगे तो आपको वाकईतन ये महसूस होगा कि ये वही मॉडल्स हैं जिनको हम डेली लाइफ में एक्चुअली इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं या देख रहे होते हैं। और सेकंड पॉइंट, द स्ट्रक्चर शुड बी सिंपल इनफ दैट वन कैन इफेक्टिवली प्रोसेस द डेटा व्हेन नेसेसरी। डेटा इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए कि उसको रिट्रीव करते हुए प्रॉब्लम फेस करना पड़े। आई मीन डेटा की रिट्रीविंग बहुत इजी होनी चाहिए, टाइम कंज्यूमिंग नहीं होनी चाहिए, या ऐसा नहीं होना चाहिए कि डेटा को एक्सेस करते हुए या डेटा को रिट्रीव करते हुए यूजर या प्रोग्रामर परेशानी का सामना करे। तो ये इंतहाई जरूरी पॉइंट्स हैं जब भी आप किसी भी डेटा मॉडल को अडॉप्ट करते हैं। Well, we have different data structures like array, stack, queue, linked list, tree and graph। अमूमी तौर पे ये 6 डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन हम इन्हीं 6 डेटा स्ट्रक्चर्स की डिफरेंट फॉर्म्स को भी स्टडी करेंगे। यहाँ पर मैं एक बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पे बताता चलूं कि यहाँ पर हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि हमारे पास 6 डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन दर हकीकत अगर हम इसको सही मायनों में थॉरली देखने की कोशिश करें तो ये 6 डेटा स्ट्रक्चर्स नहीं होते, बल्कि हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर एक ही होगा, मगर ये 6 असल में उस स्ट्रक्चर में से डेटा को रिट्रीव करने की डिफरेंट मेथोडोलॉजीज हैं। मिसाल के तौर पे जब हम एरे की बात करते हैं तो एरे में से डेटा को रिट्रीव करने का जो मैकेनिज्म है वो इंटायरली डिफरेंट होगा। स्टैक में से डेटा को रिट्रीव करने का मैकेनिज्म कंपैरेटिवली एरे मुख्तलिफ होगा, एंड सो ऑन। इसका मतलब ये हुआ कि हम इन 6 डेटा स्ट्रक्चर्स की जब बात कर रहे होते हैं तो हम असल में 6 डेटा स्ट्रक्चर्स की बात नहीं करते, बल्कि 6 डिफरेंट स्ट्रेटजीज की बात करते हैं, और ये स्ट्रेटजीज बेस कर रही होती हैं डेटा को रिट्रीव करने पे। वेल, आज के लेक्चर को मैं यहीं वाइंड अप करता हूँ। इस लेक्चर को मैं कंटिन्यू करूंगा अपने अगले वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह, और होपफुली कि यहाँ तक जो बातें की गई हैं वो आप सबको समझ में आई होंगी। और अगर आपके जहन में यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, तो आप वो क्वेश्चन या वो कंफ्यूजन आप रेस कर सकते हैं मेरे ईमेल एड्रेस पे skillopedia.academy@gmail.com पे। होपफुली कि आप लोग इस वीडियो के हवाले से अपना पॉजिटिव फीडबैक भी देंगे, और कोई अगर सजेशन आप लोग देना चाहें तो वो भी मैं ज़रूर उसको इनकरेज करूँगा इंशाल्लाह। थैंक यू, थैंक्स लॉट, अस्सलाम वालेकुम।